Hello everyone. In this second lecture for BCA first year students, we will be discussing about the features of Windows, and this is the first part of features of Windows, in which we are going to discuss about the concepts and structure of Windows. So coming to the contents of this lecture, we will be telling you about the desktop, taskbar, title bar, start menu, and the folders like my pictures, my documents, and recycle bins, my music, etc. So let's come, first topic is desktop. Now what is a desktop? You always, once you open, when you switch on your computer, the first screen which comes in front of you is the desktop. It's a space where you can organize your applications, your folders and your documents. And actually what the Windows is doing is, Windows is following a parent-child relationship. Like desktop is a parent for all the applications because it is the place where all the applications are opened. Desktop is a window without borders and parent to all other windows, because Windows is following a parent-child relationship. So let's have a view of the views how the desktop changed from different windows. The very first window, which was launched in 1985, included a graphical desktop, and the view can be seen here, and it was not so much fluent and not so much easy to handle, but yes, it was a graphical desktop. When the desktop changed its version in different windows, like Windows NT we have, you can see how the folders look like, how the desktop is looking like. And next we have the view of Windows 2000 Professional. It was somehow, it see the pattern, the graphical display and the quality of the display is changing in every version. And once we come into the XP Windows, we have this type of view over there. And next to the windows of Windows 7, the Windows 7 desktop looked somewhat like this. Next we have Windows 8. And now Windows 8, what Microsoft experimented with Windows 8 was, it included a desktop layout, but it forced to toggle back and forth between the desktop interface and the Metro interface, depending on which application you used. Why Microsoft include the Metro interface in this window was so that the window can look somehow similar to the mobile operating systems or the Mac OS systems. And now this is Windows 10. Windows 10 have been almost, it has regained the start menu, and it has merged the Metro and the legacy window desktop in a single blended desktop interface. This is the view which we have for desktop 10 today, Windows 10 today. Let's have a look on the desktop of Windows 10. This is my desktop of Windows 10. ये सारे icons हैं जो different icons display हो रखे हैं. This is the start menu, and we have the task view over there, and this is the task bar जिसके ऊपर जितने भी टास्क हमारे pinned हैं, and the applications which are opened, both are shown here. Next side we have this various options. These are the shortcuts for various options, various applications, and date and time options is also there. And this is the notification window. If we have some notification, we can show over here. So let's come back to this desktop. When we right click on the desktop, we have the option of view. View में you can view the icons as large, medium, small, or you can arrange the icons in a grid, or if you don't want to show any desktop icon on the desktop, you just uncheck. See, we are not having any icons over here, so now you can check it.
the icons are again displayed. उसके बाद we have the option of sort by, means icons को आपने कैसे sorting करनी है, by name, size, item type or date modified. You can refresh it, you know that, undo, move, and that's new. New option tells you to open a new application, like new folder you want to open on desktop, or new Microsoft PowerPoint presentations or Word document, or any these options can be used. Next is your display settings. You want to change your display, you want to change the sounds, notification actions, ये बैटरी, स्टोरेज, टैबलेट, ये सारे ऑप्शंस हैं जो आपने अपनी डिस्प्ले सेटिंग के लिए आप इफ यू वांट टू चेंज यू कैन चेंज. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ऑप्शन इन ऑफ पर्सनलाइज. जब आप राइट क्लिक डेस्कटॉप पे करके क्लिक और फिर पर्सनलाइज में आते हो, you get various options to personalize your desktop. So let them study one by one. सबसे पहला जो ऑप्शन है वो बैकग्राउंड का ऑप्शन है. बैकग्राउंड ऑप्शन में ये अभी this is the background of your desktop. If you want to change it, you can change. आप इसमें से कोई भी पिक्चर अगर लगाना चाहते हो तो you can select. अगर if you want to add any picture, आप ऐसे ब्राउज करके you can select any other picture to personalize your desktop. यहाँ से choose picture करेंगे, यहाँ upload हो जाएगी and that picture can be set as your desktop background. दूसरा ऑप्शन है solid color. अगर आपको कोई पिक्चर नहीं चाहिए, you can just go for a solid color. You can select a solid color of your choice. like आप चेंजेस देख सकते हो साथ के साथ डेस्कटॉप पे कैसे चेंजेस हो रहे हैं. जैसे मैंने ये कलर चेंज किया तो ये चेंजेस हो गए. तो इट्स अप टू यू. आप कस्टमाइज्ड कलर भी यूज कर सकते हो. आपको जो कलर इसमें से नहीं पसंद है एंड यू वांट टू चेंज इट, यू कैन डू एज पर योर रिक्वायरमेंट. थर्ड ऑप्शन इज स्लाइड शो. स्लाइड शो में क्या होता है कि आप चाहते हो कि आपकी जो बैकग्राउंड की पिक्स हैं वो आप चेंज होती रहे. यू चूज अ बंच ऑफ पिक्चर्स फॉर योर बैकग्राउंड. सिर्फ एक नहीं चेक करते, आप बहुत सारी करते हैं. जैसे ये फ्लावर्स का इनका ऑलरेडी विंडोज के अंदर ये फोल्डर है. इफ यू वांट अनदर फोल्डर ऑफ योर चॉइस पिक्स, यू कैन चूज एंड यू कैन जस्ट अपलोड इट, और आपकी जो पिक्चर्स हैं वो इसमें आ जाएंगी एंड स्लाइड शो विल बी क्रिएटेड. चेंज पिक्चर एवरी 30 मिनट्स. आप कितनी देर में पिक्चर चेंज करना चाहते हो, हर मिनट में चेंज होए, हर 10 मिनट में चेंज होए, या हर घंटे में चेंज होए, ये आपकी मर्जी, आप सेट कर सकते हो. और शफल कर सकते हो उनका सीक्वेंस इफ यू वांट, कि हम पिक्चर्स का सीक्वेंस शफल करना चाहते हैं. और आप स्लाइड शो तब भी रन करना चाहते हो जब आपकी बैटरी पावर लो है, तो इसको भी आप चूज कर सकते हो. एंड देन चूज अ फिट. आप पूरा डेस्कटॉप फिल करना चाहते हो या उसको स्ट्रेच करना चाहते हो, या टाइल्स की फॉर्मेट में छोटे छोटे पिक्स जो आ जाएंगी उसमें, या सेंटर करना चाहते हो या स्पैन करना चाहते हो. तो दिस इज ऑप्शन. लाइक बैकग्राउंड में वी हैव 3 ऑप्शंस. फर्स्ट इज पिक्चर. उसमें हम अपनी मर्जी की कोई भी पिक्चर एज अ बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं डेस्कटॉप की. कोई सॉलिड कलर जिसमें हम सिंगल कलर सेट कर सकते हैं. स्लाइड शो जिसमें कि हम मल्टीपल पिक्चर्स अपलोड करते हैं और सिस्टम अपने आप जो भी आपने इंटरवल सेट किया है उसके ऊपर वो चेंज करता रहता है पिक्चर्स को. नेक्स्ट इज लाइक द वे इट इज चेंज नाउ. ओके, नेक्स्ट इज कलर्स. अब ये जो कलर्स हैं, जो आपकी डायलॉग बॉक्स ओपन होंगे या आपका टास्क बार शो होएगा या वेरियस ऑप्शंस ओपन होंगे, तो ये उनका कलर है कि आपको वो कैसा चाहिए. अभी फिलहाल हमारी ये थीम है. इफ यू वांट टू चेंज द थीम, इफ यू वांट टू गो फॉर अ डार्कर थीम, ये इस तरीके से डार्क थीम होगी. अब आपकी वो है. अब इसमें भी अब जैसे ये ग्रीन कलर है बिकॉज ये ऑलरेडी उसका मैचिंग का कलर है. इफ यू वांट टू चेंज, आप इसमें से कोई भी कलर चेंज करके और इसको अप्लाई कर सकते हो एंड यू विल सी द डिफरेंस. सी हियर द कलर हैज चेंज्ड. आप जो भी थीम चुनोगे यू कैन चेंज इट अप टू योर रिक्वायरमेंट. जो भी आप इसमें से चूज कर सकते हो. जैसे फॉर एग्जाम्पल आई हैव सेट, सी द चेंजेस हाउ इट इज अकरिंग.
देखो कितना फर्क पड़ता है, वो यही कलर चेंज हो गया। सो ये आपकी कलर्स, आप जो जिस चीज में आपका टास्क बार ओपन होगा या स्टार्टअप मेन्यू ओपन होगा या डिफरेंट आइकन्स ओपन होंगे, तो डायलॉग बॉक्स की जो फ्रेम्स हैं वो किस कलर के होंगे, दिस इज सेट बाय दीज कलर्स। सो अब इसमें अगर मैं लाइट थीम करती हूँ तो भी हम कर सकते हैं। अगर मैंने अपनी थीम कस्टमाइज करनी है, आई नीड अ कस्टमाइज थीम, मैं अपनी थीम को करना चाहती हूँ कि डिफरेंट कलर, तो आप इसमें से भी अपने कलर चूज करके और उसको आप कस्टमाइज कर सकते हो। अब ये जो एक्सेंट कलर आप चूज करना चाहते हो, तो ये टाइटल बार्स और विंडोज के बॉर्डर्स पे आए, या आप चाहते हो स्टार्ट, टास्क बार और एक्शन सेंटर में भी शो होए, तो ये आपकी ऑप्शन चूज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली कि आपको ये कलर किस किस में, जैसे see the difference, now it is gray, if I click on this, now the color has been changed because I have chosen this color, तो ये कलर यहाँ पे भी अप्लाई हो गया। सो ये इसका ऑप्शन है टू चेंज द कलर्स ऑफ योर डेस्कटॉप। नेक्स्ट इज योर लॉक स्क्रीन। अब लॉक स्क्रीन है कि जब आप लॉक्ड होते तो उस पे कौन सी पिक्चर आना चाहिए, तो ये विंडो स्पॉटलाइट तो ये है, आपने जो भी बैकग्राउंड लॉक स्क्रीन के ऑलरेडी विंडो के अंदर कुछ पिक्चर्स हैं विच आर सेट फॉर योर लॉक स्क्रीन लाइक दिस, इट इज नाउ यू कैन, आप इसमें कोई पिक्चर भी डाल सकते हो, लॉक स्क्रीन पे कोई भी शो होए, आप ये चाहते हो या ये चाहते हो, इवन यू कैन सेलेक्ट योर ओन पिक्चर। सिमिलरली इज विद द स्लाइड शो, अगर लॉक स्क्रीन पे आप चाहते हो कि स्लाइड शो ही डिस्प्ले होए, कि बार बार पिक्चर्स चेंज होती रहे विद फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम्स, दैट कैन आल्सो बी डन। सो इसमें है कि आपने कौन सी ऐप का स्टेटस शो करना चाहते हो जो लॉक स्क्रीन पे आए, लाइक द डेट। अभी हम इसमें देख रहे थे, हमने यहाँ कैलेंडर शो किया है, तो आप देखो यहाँ पे आपका कैलेंडर शो हो रहा है कि ट्यूसडे ये डेट है और ये टाइम है। तो हमने इसको, अगर आप और कोई ऐप चूज करना चाहते हो जो आप शो करना चाहते हो इसके ऊपर लॉक स्क्रीन पे, देन ऑल्सो यू कैन यूज इट। और उसके बाद है विच ऐप शो क्विक स्टेटस ऑन द लॉक स्क्रीन। भी लॉक स्क्रीन पे क्विक सा स्टेटस बनने के आए कि भी कुछ चीजें हमें उसी लॉक स्क्रीन से ही ओपन करने में इजी हो जाए, तो वो ऐप्स भी आप सेलेक्ट कर सकते हो एंड यू कैन सेट इट ऑन योर लॉक स्क्रीन। नेक्स्ट ऑप्शन इज ऑफ थीम्स। अब एक ना थीम होती है कि हर कलर कॉन्ट्रास्ट वो ऑटोमेटिकली, जैसे हमने एक कलर चूज किया था अपने कलर्स में और उसने सारे टास्क बार, सारे डायलॉग बॉक्सेस, सबके कलर्स को एक थीम में चेंज कर दिया, माउस पॉइंटर भी चेंज कर दिया उसने, कलर्स को भी, साउंड वाला, बैकग्राउंड, एक पर्टिकुलर थीम हो जाती है। नाउ इफ यू वांट टू चेंज द थीम, सारी चीजों की आप इन बैकग्राउंड एंड ये चीजें सारी चेंज करना चाहते हो, तो यू कैन चेंज द थीम एंड यू कैन गेट एनी ऑफ द थीम यू वांट, जैसे भी आपको सही लगे, जो भी आपको ठीक लगती है। सो दिस इज योर थीम। नाउ सी, अब अपने आप ही ये वाली थीम लग जाएगी कि इसके कलर्स ऐसे आएंगे और ये ऐसे। आप कस्टम भी कर सकते हो थीम को, यू कैन क्रिएट योर ओन थीम। जैसे कि अगर हमने कस्टम थीम, हमने क्यों कस्टम, अब ये कस्टम क्यों चूज हुई है, क्योंकि हमने ये ब्लू कलर चूज किया हुआ था पीछे, जो हमने कलर चूज किया था, ये अकॉर्डिंगली उस ब्लू कलर के अकॉर्डिंगली थीम जो है वो कस्टमाइज होगी। नाउ इफ यू वांट टू चेंज इट, you can go for a selected theme which is already saved. So I have selected this one and ready to go. This is the theme option. Now is the fonts option. अब जो चीजें डिस्प्ले हो रही हैं उनका आपको फॉन्ट कैसा चाहिए, how the font should look like, so you can add the fonts over here. All languages fonts are there. These are all the fonts which you want. These fonts are already there in the system, so you can choose any of the fonts which you want and that will be go. Now the start menu. Start menu is show more tiles on start, ऑफ कर सकते हो, अपने आप उसमें आएंगी। ऐप लिस्ट इन स्टार्ट मेन्यू, रिसेंटली एप्स शो हुए स्टार्ट मेन्यू में। न्यू सजेशंस ओकेजनली इन स्टार्ट मेन्यू, यूज स्टार्ट फुल स्क्रीन,
like the way when you click on this start, only this window is opened. If you want this full screen should be open, you can change it. So for the start menu, you can change the option from here. Next is your taskbar option. टास्क बार को भी आप अपने अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर सकते हो, उसको भी कस्टमाइज कर सकते हो कि जैसे सपोज करते हो ऑटोमेटिकली हाइड द टास्क बार इन द डेस्कटॉप मोड, सो यू कैन automatically hide, like there it is not seen. when your cursor will move here, only then it will be seen. जब आप यहाँ से कर्सर हटा दोगे तो आपका टास्क बार नहीं आएगा. See the difference. यूज स्मॉल टास्क बार बटन्स यूज कर सकते हो आप. ओके, एंड these are some of the options. So this is all about the personalized option in the desktop. Coming back to the start menu. Start menu, अगर आपने कोई भी एप्लीकेशन अपने सिस्टम पे ओपन करनी है तो बहुत इजी ऑप्शन विंडोज 10 प्रोवाइड करता है. यू कैन जस्ट टाइप हियर लाइक यू वांट टू ओपन वर्ड, so you will get WordPad, Word, whatever you can type and just open it like this. So you need not to search it anywhere, और आप इसको easily open कर सकते हो. और स्टार्ट मेन्यू पे भी दो ऑप्शंस होते हैं. अगर आप इस पे लेफ्ट क्लिक करोगे तो यू विल गेट ऑल द एप्लीकेशंस विच आर स्टोर्ड इन योर कंप्यूटर सिस्टम, लाइक फ्रॉम ए इट इज लाइक AC. एंड अगर आपने डायरेक्टली कोई एप्लीकेशन का नेम S से शुरू है या M से शुरू है, यू जस्ट क्लिक इट डबल टाइम्स एंड यू कैन जस्ट डायरेक्टली जंप टू द मेन्यू. और यहाँ जो आइटम्स डिस्प्लेड हैं ये सारे के सारे आइटम्स वो हैं जो आपने पिन किए हुए हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वॉन्ट टू पिन समथिंग लाइक मैप्स, ऑल्सो राइट क्लिक करो, अनपिन, इट इज ऑलरेडी इन दिस. आप पिन करना टास्क बार पे पिन करना चाहते हो, यू कैन पिन. अनपिन फ्रॉम द स्टार्ट, ये स्टार्ट में पिन्ड है ऑलरेडी, यहाँ था मैप्स एंड आई हैव रिमूव्ड इट. आई कैन अगेन पिन टू स्टार्ट. yes, it is again over here. So ये जो ऑप्शंस आपको प्रोवाइड हो रहे हैं ये बेसिकली आपकी जितनी भी एप्लीकेशन है अपने डेस्कटॉप में उनको इजीली एक्सेस करने के लिए है. नाउ दिस वाज अचीव्ड बाय क्लिकिंग लेफ्ट ऑन द स्टार्ट मेन्यू. व्हेन यू क्लिक राइट ऑन द स्टार्ट मेन्यू, ये जो व्यू आता है ये आपकी पुरानी विंडोज वाला व्यू है जो आपको पुराने विंडोज में आता था. एंड फ्रॉम हेयर अगेन यू कैन गो, लाइक अगर आपने डेस्कटॉप पे ही जाना है या वॉट एवर एप्लीकेशंस ये हैं, डिवाइस मैनेजर्स हैं, नेटवर्क कनेक्शंस हैं, टास्क मैनेजर पे जाना चाहते हो, रन या कुछ सर्च भी करना चाहते हो, तो दिस कैन बी डन. दिस इज ऑल अबाउट द स्टार्ट मेन्यू. आफ्टर द स्टार्ट मेन्यू एंड द सर्च ऑप्शन वी हैव अ टास्क व्यू. टास्क व्यू का क्या काम है? इट शोज योर डेस्कटॉप्स मल्टीपल व्यू. मोरओवर आपके जितने भी टास्क ओपन हैं, लाइक हमने एक पीपीटी ओपन की थी तो यहाँ शो हो जाती है. अब एक और चीज हम करते हैं, सपोज आई ओपन ऑल द एप्लीकेशंस. आई हैव ओपन दिस, आई हैव ओपन दिस एंड आई हैव ओपन दिस. अब मैंने इतनी सारी एप्लीकेशंस यहाँ ओपन कर ली हैं. इट इज ऑल क्रिएटेड मेस. सो अगर मैं जाती हूँ टास्क व्यू पे, लुक in this desktop view I have created like 4 applications are opened. मैं चाहती हूँ कि हर desktop view में एक अलग सी application आए. What I can do is I can shift this application to another desktop. अगर मैं इसको open करूँगी तो I'll get this much only. जो application आपने उसमें shift की है आपको सिर्फ वही मिलेगी. अगर आप इस पे अकेले जाएंगे तो you will get only this application. So this is the way how you can change your desktop, or you can manage multiple desktops over here in this task view. Next option is the various tasks which has been which you have opened are shown over here. Also आप पिन भी कर सकते हो. यहाँ पे जो applications आपकी बार बार यूज होती हैं, you often use those application, you can pin those application in the taskbar. Next जो right side के corner पे है, right side corner पे we have options like
ये सारे जिसमें कि आपको अलग अलग ऑप्शन, जिसमें कुछ एप्लीकेशन को मैंने मिनिमाइज भी किया हुआ है. दिस इज वाईफाई ऑप्शन, आप इसमें से ले सकते हैं. एंड this is like volume, language change, time and date, and this is notification. So these application, ये आपकी राइट हैंड कॉर्नर पे जो साइड्स हैं, ये इस पे ये जो विंडो है, ये सारे के सारे ऑप्शंस जो हैं उनको मिनिमाइज करता है. दोज वेरी यूजफुल एप्लीकेशंस, स्मॉल एप्लीकेशंस कैन बी लाइक ब्लूटूथ हो गया, वाईफाई हो गया, लैन कनेक्शन हो गया, मीडिया कार्ड है, आपका टाइम है, डेट है. ऑल दीज थिंग्स आर कैन बी मैनेज फ्रॉम दिस लोअर right corner of your desktop. Now we will learn about the 3 folders in any Windows. When you click on this PC, you get these folders by default: desktop, Windows, downloads, music, pictures, videos. अब इस लेक्चर में हमने पिक्चर फोल्डर, डॉक्यूमेंट फोल्डर और म्यूजिक फोल्डर के बारे में स्टडी करना है. पहले लेट्स क्लिक ऑन द पिक्चर्स फोल्डर. अर्लियर वर्जन्स ऑफ विंडोज हैव द नेम ऑफ दिस फोल्डर एज माई पिक्चर्स. विंडोज 10 में इसका नाम चेंज कर दिया गया है, अब इसका नाम पिक्चर्स है. पहले वाले वर्जन्स में ये माई पिक्चर्स होता था. दिस फोल्डर is the default destination for saving the pictures in Windows. आप अगर कोई डेस्टिनेशन स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो पिक्चर्स आएंगी विंडोज के अंदर वो इस फोल्डर में आती हैं. सिमिलरली बाय डिफॉल्ट डेस्टिनेशन टू सेव द डॉक्यूमेंट्स इज डॉक्यूमेंट्स फोल्डर. इसका भी नाम माई डॉक्यूमेंट से चेंज होके डॉक्यूमेंट हो गया है. Similarly, my music से change होके music folder and all the music files will be saved in this music folder. तो ये by default folders ही है. ऐसा नहीं है कि और जगह आप पिक्चर सेव नहीं कर सकते हैं. जब भी आप कोई भी पिक्चर डाउनलोड करते हैं ब्राउजर से, वो by default डाउनलोड्स वाले फोल्डर में जाके सेव होती है. अगर आप कोई और फोल्डर चूज करना चाहते हैं तो यू कैन, आप अलग अलग जगह अपनी पिक्चर सेव कर देते हैं एंड अब नहीं पता आपको सारी अपनी पिक्चर्स जो हैं वो ढूंढनी है. आपने अपनी सारी फोटोज को ढूंढना चाहते हो सो दैट कि आपको पता लगे कि कहाँ कहाँ पे सेव्ड है. तो उसके लिए यू हैव एन ऑप्शन. यू जस्ट सपोज कि जिस भी ड्राइव में आप ढूंढना चाहते हो, यू कैन क्लिक ऑन दैट. यू कैन गो टू द सर्च विंडो. सर्च विंडो पे जाके यू हैव दिस सर्च बार और इसमें आपके पास ये आपका है काइंड. यू कैन चेंज द काइंड में अब सपोज आपने पिक्चर्स ढूंढनी है अपनी, तो यू क्लिक ऑन द पिक्चर. आप देखोगे कि यहाँ पे ये काइंड इज इक्वल टू पिक्चर आ गया. अब इसमें आपका जितने भी पिक्चर सेव्ड हैं सी ड्राइव के अंदर, आपकी जितनी भी पिक्चर सेव्ड हैं, यू विल ऑल रिट्रीव हियर एंड यू कैन चेक इट एंड गेट द पिक्चर्स फ्रॉम देयर. इसका एक ऑप्शन और भी है. आप इफ यू नो कि आपके पिक्चर की एक्सटेंशन क्या है, अगर आप सिर्फ जेपीजी इमेज यूज करना ढूंढना चाहते हैं, यू .jpg टाइप कर दीजिए एंड इसमें आपकी जितनी भी जेपीजी फाइल्स आपके पास सी ड्राइव में सेव्ड होंगी, आपके पास वो सारी जेपीजी जिसकी एक्सटेंशन है वो सारी के सारे पिक्चर्स आ जाएंगे. ये सेम केस आपका डॉक्यूमेंट के लिए भी है. अगर आप kind is equal to document करेंगे, from here you can select document. kind is equal to document जब करेंगे तो you can retrieve all the documents in the drive which you have chosen. अगर आपको पता है कि आपका डॉक्यूमेंट डॉक है या पीपीटी है या जो भी है, यू कैन यूज डायरेक्ट एक्सटेंशन. सपोज करो आपने डॉक एक्सटेंशन यूज की, यू वांट टू रिट्रीव ऑल द डॉक फाइल्स. सो आप देखना जिसमें भी डॉक आएगी एक्सटेंशन .doc जिसकी भी एक्सटेंशन होगी, दोज फाइल्स विल बी विजिबल फ्रॉम हेयर. दिस इज द वे हाउ यू सर्च फॉर योर ऑप्शंस. नाउ डॉक्यूमेंट्स फोल्डर है, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो ऑलरेडी सेव्ड हैं इस फोल्डर में, डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में. यू हैव ऑप्शंस
फाइल का ऑप्शन है, इसमें ये चीज़ें ओपन इन अ न्यू विंडो, या आप हेल्प जाते हो, या यू कैन चेंज द ऑप्शंस फॉर फोल्डर एंड सर्च ऑप्शंस भी चेंज कर सकते हो। ये सारे मूव टू, कॉपी टू, सपोज ये मैंने सेलेक्ट किया, यू वांट टू कॉपी, मूव टू, यू वांट टू मूव इट दिस फोल्डर फ्रॉम हेयर टू समवेयर एल्स, यू वांट टू रीनेम इट, यू कैन रीनेम इट, डिलीट करना है तो डिलीट हो जाएगा। ये ऑल दोज ऑप्शन, इससे विंडोज 10 की ये स्पेशल प्रॉपर्टी है, इट प्रोवाइड्स ऑल दीज ऑप्शन within a fraction of a click. You can achieve all these options, and if you want to share the document, you can directly share it, you can burn it to the disk directly from here only, print करना है, fax करना है, email करना है, यहीं से ही आप डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करके आप कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इज व्यू। व्यू ऑप्शन में लार्ज आइकन, स्मॉल आइकन्स, आप प्रीव्यू पेन कैसा देखना चाहते हो या डिटेल्स में देखना चाहते हो, लाइक दिस, इट इज अप टू यू। ऐड कॉलम्स, आपने कोई कॉलम डेट क्रिएटेड का कॉलम भी ऐड कर दिया आपने, या आप इसमें एक्सटेंशन, फाइल नेम एक्सटेंशन साथ में आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, ऑल दीज ऑप्शंस। ये जो मेन्यू बार है, ये मेन्यू बार विंडो एक्सप्लोरर का मेन्यू बार है, एंड इट इज कॉमन टू ऑल द फोल्डर्स विच यू विल ओपन इन विंडोज 10। ये आप चाहे माई डॉक्यूमेंट्स ओपन कीजिए या आप म्यूजिक ओपन कीजिए, दिस मेन्यू बार विल नॉट चेंज, इट विल रिमेन एज इट इज। म्यूजिक का भी सेम वही सर्चिंग ऑप्शंस यूज कर सकते हो, एंड यू कैन यूज दीज एडिटिंग या फॉर्मेटिंग ऑप्शंस ऑल्सो। The next important by default folder in Windows is Recycle Bin. Recycle Bin is basically it is a folder which contains the files which you delete from your system, या simply आप जो delete करके simply right click करके delete करके जितनी भी files को करते हैं, that goes into the Recycle Bin, like whatever you have deleted it is there. Now रिसाइकल बिन में ये सारा, ये मेन्यू बार रिसाइकल बिन का है। जो भी रिसाइकल बिन में जितनी भी चीजें पड़ी हैं, इफ यू वांट टू एम्प्टी द रिसाइकल बिन, यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस, यू विल, रिसाइकल बिन एम्प्टी हो जाएगा। ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं कि रिसाइकल बिन जो है फिलहाल इसकी लोकेशन सी ड्राइव में है, एंड द मैक्सिमम साइज ऑफ दिस रिसाइकल बिन इज दिस मच। इफ यू वांट कि आपके जितने भी डिलीटेड आइटम्स हैं वो रिसाइकल बिन में ना सेव होए, यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस ऑप्शन, डोंट मूव फाइल्स टू द रिसाइकल बिन, एंड दे विल डिलीटेड परमानेंटली फ्रॉम योर सिस्टम। इफ यू समहाउ आपने गलती से कोई आइटम डिलीट कर दिया और वो रिसाइकल बिन में पहुंच गया एंड यू वांट टू रीस्टोर इट, आप उस आइटम को क्लिक करके रीस्टोर ऑल, रीस्टोर पे जब क्लिक करेंगे, यू सेलेक्ट द आइटम एंड रीस्टोर, तो ये जो फोल्डर है जहां से भी डिलीट हुआ था, जिस लोकेशन से डिलीट किया था, ये उसी लोकेशन पे जाके रीस्टोर हो जाएगा। और उसके बाद दिस ऑप्शन इज फॉर होम। ये जो मेन्यू बार है ये सेम विंडोज एक्सप्लोरर वाला मेन्यू बार है। यू वांट टू मूव इट, यू वांट, सेम हम जो अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, सेम ऑप्शंस आर देयर। this because this menu bar is common to every folder in Windows 10, and here you have some recycle bin tools which we have already discussed. So अगर आप चाहते हो कि कोई आइटम मेरा रिसाइकल या कोई भी फाइल which I delete that shouldn't go to recycle bin and it should be permanently delete, so you can just click on that item and press shift plus delete. आप shift plus delete करके जिस पे भी क्लिक करोगे वो रिसाइकल बिन में जाके सेव नहीं होगा, वो डायरेक्टली, वो परमानेंटली रिमूव हो जाएगा। सो व्हाट वी अंडरस्टैंड इज रिसाइकल बिन इज बेसिकली अ ट्रैश बिन which contains all the deleted items of your system, and it has some time limit, it has the storage limit also. जब भी इसकी स्टोरेज लिमिट एक्सीड होती है तो ये बाकी सारे आइटम्स में ऑटोमेटिकली परमानेंटली डिलीट हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद जो आपने आइटम डिलीट किया, इफ यू डू नॉट रिट्रीव इट फॉर सम पर्टिकुलर डेज,